Okay, chaliye, let's start. I think so. It is 11. We can start, right? Sahil, Abhishek, Bhavesh, Manoj, Supriyo, are we there? Eman, Hetvi, yes. Mitali, I hope we are there. Yes. Sakshi, शुरू करें शुरू करें Shall we start? Okay, so can I have a rough idea of how many of you are here for GPAT, how many of you are for NIPER, how many of you are for GATE? For which examinations are we exactly targeting? IIT, BHU, ICT, or DSSB, RRB, AIMS? Yes, Janardhan? May I know which exams are we all targeting currently? Yes, Arup, Anurag, Ansh, Anish, Amit, Gaurav, Dharmendra, Gitanjali, Gaurav, Hetvi, Madina, Manish. Can I get a rough idea? Yes, Vicky, Varsha, Yoshit. Can I get a rough idea? Yes. You all can type in the chat box. Okay, GPAD and NIPO. Okay, mostly that public is, yeah, public of GPAD and NIPO. So I hope that my whiteboard is visible to all of you. I hope that my whiteboard is visible to all of you. So when I talk about pharma exams, we have multiple exams in our way. GPAT, जो अभी 25 को होने वाली on 24th. NIPER 10th June. GATE is already over. BITS, the forms are out. I hope we have filled. ICT, MTech, the forms are out. We can fill. AIMS, well, next year I think RRB is going to come. DSSB is also going to come. Manipal, I hope we have filled the forms for Manipal. Yes, and IIT BHU. I hope we have filled the forms for IIT BHU as well. And then there are some other miscellaneous examinations, state specific. So these are the most common exams that are available for us, and यही exams के आसपास हमारा syllabus pharma का घूमता है. Okay, and when you talk about different exams, so they have a very similar syllabus. जैसे AIMS का syllabus, GPAT is all very very similar. Right, दिव्या, उज्जवल, तर ते एकसारखाच आहे. ओके, लक्ष द्या इकडे, यहाँ पर ध्यान दीजिए. ठीक है, अय्या ध्यान आपो बधा. हाँ जी, यहाँ ध्यान दीजिए. चलो. So, when I talk about the syllabus, most important topics that you should cover with respect to the last 1 month. एक महीने में ऐसा क्या करे जिससे हमारा क्रैक हो सकता है. रैंक आएगी नहीं आएगी, इट्स अप टू यू दैट हाउ मच यू स्टडी, बट क्रैक हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे क्रैक करते हैं. रैंक आएगी या नहीं, दैट आई कैन नॉट गारंटी. ठीक है, वो तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर ही है. वो तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर ही है. डन डनाडन. चलिए, लेट्स बिगिन. So when I talk about Cology, कौन से subjects that we should focus more on currently? Cology, Cognosy, Sutics, Chemistry, and Jurisprudence. And Jurisprudence. Okay. These are the most common topics that we must pay attention to. मतलब ये तो पढ़ने ही है, इसको you cannot leave, ये छोड़ ही नहीं सकते. Yes, we cannot leave this. Right? Gaurav, Prathamesh, Divya, Anish, Supriyo, I hope we are there. Yes, Arup, Hema, Hem Pandya. चलिए चलिए, लेट्स मूव अहेड. सो कोलोजी में क्या मुझे चैट बॉक्स में कुछ टॉपिक्स मिल सकते हैं दैट आर वेरी फेमस, जैसे जिससे क्वेश्चन आना ही आना है? एक तो है ड्रग्स एंड द एडीआर. कंपल्सरी ड्रग्स एंड द एडीआर से तो क्वेश्चन आना ही आना है. देन द नेक्स्ट इज क्लिनिकल ट्रायल्स. वी कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 questions in NIPER for sure for clinical trials. Then next up we have receptors, ligand gated, G protein. Yes, feel free to type everything in the chat box. Okay, whatever you feel is important, chat box में लिखते जाओ. I'll watch it later. ठीक है? Adverse drug reaction the drugs, then drugs and the active metabolites, right? Drugs and the active metabolites, and classification. Sir, classification तो there are so many and we forget. याद नहीं रहते. Once look at the classification and write, and once write it without looking at it. ठीक है, फोकस के साथ. मजाल है कि आपको वो चीज याद ना हो. डेफिनेटली ते लक्षातच राहतील तुमच्या. ओके, वो आपको याद रहेगा. यस, ई याद रहीत जैसे તમને.
चलिए लेट्स मूव अहेड. सो क्लासिफिकेशन में वी हैव एंटी कैंसर, जिससे क्वेश्चन every year comes. Antimicrobial, every year there's a question. Antiviral, antifungal, every year there's a question. We know कि इससे आने ही वाला है, कंपलसरी है, फिर भी हम नहीं पढ़ते. एंटी मलेरियल, आजकल वो लोग हार्मोनल ड्रग्स पे काफी पूछ रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड ऑल. देयर हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ऑल ऑफ दीज वेरी फ्रीक्वेंटली. देन पार्किंसन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, पार्किंसन, डिप्रेशन. सब लोग लिख रहे हैं ना मेरे साथ? एवरीबडी आर वी राइटिंग? आर वी राइटिंग? आपके जो भी डाउट्स हम एंड में सॉल्व करेंगे. अभी बस मेरे साथ सुनो. ऑल आई वांट यू टू डू इज लिसन टू मी, राइट? And write whatever important topics are supposed to be covered in the next. How are they supposed to be covered, from where, वो भी मैं बताऊंगा. कहाँ से करना है, कब करना है, कितना करना है. अभी बस आप लिस्ट करिए. For now you must only list it down, right? Antimicrobial, cancer, fungal, malarial, hormonal, depression, hypertension, arrhythmia, ANS drugs, lipidemia and arrhythmia. These are the most important classification that you must cover. इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है? एंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो. इफ यू आर राइटिंग यू कैन राइट आल्सो. दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपके 25 क्वेश्चंस दैट आर सपोज्ड टू कम फ्रॉम कोलॉजी. यस, सो ये इसी पार्ट से आएंगे, ये इसी पार्ट से आएंगे. यस, वर्षा, गौरी, अभिषेक, हेम, निशा, सुप्रियो, अभिषेक, मिताली, ऐमान, भावेश, मनोज, सचिन, आविदय, क्रेजी फार्मा, चिरंजीवी, चिराग, भारती, आयुषी, अंशिका, गौरव, आई होप यू आर देयर. यस, आयुषी, अरुण, आविदय, आविदय, यस, अमित, अखिलेश, अभिषेक, आदर्श, आई होप यू आर देयर. मोहित, साहिल, भार्गव, यस एवरीबडी, सब है मेरे साथ. योशित, आई होप यू आर देयर. विवेक, विक्की, वैभव, उज्जवल, जनार्दन. चलिए. यस सुशांता, आई कैन सी लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स देखने मिल रहे हैं मेरे को. यस शुभसी, शुभम, पार्ट 2, आई होप यू आर देयर. यस शंकर, सरफोज, सलोनी, साईनाथ, सागर, सचिन, ऋत्विक, ऋषिकेश, रुचिका, प्रथमेश, प्रथम, पोषण, परमिता, ओम प्रकाश, निशा, यस, नेहा, निक्की, मेघराज, मिताली, शहबाज, मरियम, मयूरी, मदीना, मनीष, काफी टाइम बाद. यस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई होप ये एक बस मुझे दे दो, ठीक है? ये 1 घंटा आई विल मेक श्योर आई विल क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, ठीक है? बस 1 घंटा मुझे सुन लो. आई नो छुट्टी है, अंबेडकर जयंती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी अंबेडकर जयंती टू ऑल ऑफ यू. बट प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट एवर आई विल बी डिस्कसिंग. ये सारी बोलते हैं ना कि हमें कैसे पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे क्या आप करिए, फ्रॉम वेयर टू डू, हाउ मच टू डू, व्हाट डेप्थ वी नीड टू डू. सो ठीक है, ये आपको मालूम हो जाएगा. यू विल कम टू नो अबाउट दिस. ज्यूरिस्प्रूडेंस में, एंड मेरा चैट बॉक्स हैंग हो जाना चाहिए, इतना लिखो. जैसे ही मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलूँ तो आपको तुरंत ही स्केड्यूल ए टू स्केड्यूल वाई याद आ जाने चाहिए. As soon as I write jurisprudence, you must remember the committees. Bhor Committee, Chopra Committee, Drug Inquiry Committees. As soon as I remember, you must remember, say jurisprudence, you must remember the acts. Drug and Cosmetic Act, Drug and Magic Remedies Act, right? Medical Termination of Pregnancy Act, Medical and Toilet Preparation Acts. And then, what is misbranded, what is adulterated, what is spurious. Then the last topic that you need to cover from this, Kuchegar is the best book for jurisprudence, and Jain. Kuchegar and Jain, these are the two best books. And then last, form numbers, especially form 20, 21, 22, 20, 24. Okay, 20 में 20A, 20B, 21 में 21A, 21B, 24. ओके, ये सारे फॉर्म नंबर्स तो याद रखने ही रखने हैं. फॉर्म 8, फॉर्म नंबर 8, ठीक है? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी मैं वहां पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है? तो वो प्लेलिस्ट आपको कवर करिए, एंड यू हैव टू चेक कि आपने उस प्लेलिस्ट से कितना किया. यू हैव टू एनालाइज. हम बोलते हैं ना कि सर हम पढ़ते हैं, वी स्टडी,
बट वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमें वो चीज ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती। पता है क्यों? आज तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, है ना, कोई कुछ वो नहीं है खास सीक्रेट वीक्रेट, सिंपल है। तीन चीजों को साथ में यूज करो, यूज थ्री थिंग्स साइमल्टेनियसली, अपने आप चीजें तुम्हें याद रहेगी। In psychology, it is said that we have three types of memory: audio memory, visual memory, and video memory. Sorry, muscle memory. Audio memory, visual या video memory, and muscle memory. जब आप सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, ऑडियो मेमोरी। जब आप लिख रहे हो, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू आर राइटिंग, दैट्स अ मसल मेमोरी। एंड विजुअल मेमोरी, वॉट एवर यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, तो अलग मैं अलग 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 कलर में लिख रहा हूँ, अलग अलग टाइप पे से लिख रहा हूँ फ्लो चार्ट्स में। सो अब आप जब सुन रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, ये तीनों चीज जब आप साथ में कर रहे हो फोकस देके, तो गारंटी है कोई भी एग्जाम हो फार्मेसी की, जी पैट, नाइपर, एक्स वाई जेड, कोई भी निकलनी फिक्स है। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन 100%। सो दीज थ्री, इन तीनों का यूज साथ में करना बहुत जरूरी है, तो आपको कोई भी चीज याद रह जाएगी, है ना। और एक बार रिवाइज करना है बस, कोई चीज भूल नहीं पाओगे, फिर कोई भी चीज भूल नहीं पाओगे। तुमने बहुत ज्यादा ही टाइप कर दिया लगता है, मेरा पूरा का पूरा चैट बॉक्स हैंग हो गया है। चलो, नो प्रॉब्लम, बट आई होप दैट हमें आवाज आ रही है। कैन समबडी जस्ट कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? कैन सम प्लीज कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है। मैं मीट पे नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मीट अटक गई है, बट आई होप दैट वी आर राइटिंग। क्या बात है, 100 लोग जुड़ गए हमसे, बढ़िया है। यस सागर, सचिन, आई होप वी आर देयर। चलो, यस सलोनी, चलिए। केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री की ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज रियली टीडियस। हाँ, हे सगळ्यांना आवडतं नाही ऐसा सब्जेक्ट आहे. सो केमिस्ट्री इज समथिंग दैट वी ऑल डोंट लाइक, है ना। આવો સબ્જેક્ટ છે ને જે કોઈને જ નથી ગમતો. So but chemistry से you need to do SN1 SN2, that is a favorite question of the GPAT examiner. even नाइपर इवन नाइपर में ये पूछ लेते हैं बहुत बार। 2 साल से तो एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन आया है SN1 SN2 E1 E2 पे। सो यू मस्ट डू नेम रिएक्शंस। तो मेरे चैट बॉक्स में क्या मुझे 50 नेम रिएक्शन के नाम मिल सकते हैं? कोल्बे, रीमर, टाइमैन, बेकमैन, बेयर, विलेगर, श्मिडिट, क्लेजन स्मिडिट, वर्ड्स, फिटिग, रोजेनमंड, यस, क्लेमेंसन, कैनिज़ारो, अल्डोल, परकीन, reformetsky, manic. Can I have names of Cope's rearrangement, Diels-Alder reaction, open hours oxidation, Bayer-Villiger oxidation? Yes, can I have names of name reactions in my chat box? हाँ जी, बता देंगे कुछ नेम रिएक्शन के नाम। एंड ड्रग्स एंड द हेट्रोसाइकल्स एंड द ड्रग्स एंड द एक्टिव आइसोमर्स, जैसे वॉर्फोरिन। सो वॉर्फोरिन का नाम सुनते ही S माइनस आइसोमर ऑफ वॉर्फोरिन इज मोर एक्टिव। आइब्यूप्रोफेन, S प्लस आइसोमर ऑफ आइब्यूप्रोफेन इज मोर एक्टिव। कीटोकोनाजोल, सिस आइसोमर ऑफ कीटोकोनाजोल इज मोर एक्टिव। एपिनेफ्रीन, R minus isomer of epinephrine is more active. Diethylstilbestrol, trans isomer of diethylstilbestrol is more active, है ना। डॉक्सेपाइन, S isomer of Z isomer of doxepine is more active. So drugs and the active isomer is very very important. Cetirizine, levo isomer of cetirizine is more active. Omeprazole, S isomer of omeprazole is more active. Zopiclone, S isomer of zopiclone is more active. देखो 15-20 तो मैंने ऐसे ही गिना दिया। ठीक है, तो you must be having a thorough idea about all this. Yes, are we clear till here? आदर्श, अद्विक, yes, are we there? समझ आ रहा है सबको, एवरीबडी? देन अप वी हैव, मैंने एक और चीज क्या बोली थी इससे पहले, ड्रग्स एंड द हेट्रोसाइकल्स। डियर ऑल, मैंने कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाया आज के लिए। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ लिखें। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, अगर हूँ लखी रही छू व्हाइट बोर्ड पर, देन आपको भी मेरे साथ लिखना है। यू शुड ऑल्सो राइट, ठीक है। सोबत सोबत लिहून जा, ओके। चलो, माय मराठी इज नॉट दैट गुड, बट आई होप दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। आई होप दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। यस एवरीबडी, चलो, समझ आ रहा है सबको? सो दिस इज अ बेयर मिनिमम दैट यू मस्ट कंप्लीट फॉर एग्जाम, ठीक है। ये केमिस्ट्री का हो गया। अब कोग्नोसी पे चलते हैं। कोग्नोसी की अगर मैं बात करूं, तो कोग्नोसी में आपको मेटाबोलाइट्स तो याद रखने ही हैं। कैन यू टेल मी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल? सर, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
एंजाइम्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज, पैपेन, ब्रोमिलीन। सेकेंडरी में टैग एफवीआर, टैनिन, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स एंड टर्पिनॉइड्स। tannins, alkaloids, glycosides, flavonoids, volatile oils, resins. अब you know what is the best way to analyze things? बेस्ट वे टू एनालाइज थिंग्स बताऊं मैं? जब मैं कोई एक टॉपिक आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड शरद, आई होप संगीता, हम लिख रहे हैं, जब वो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें याद आ रही है, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि सपोज मैंने नाम लिखा डिगॉक्सिन। अब डिगॉक्सिन बोलते ही क्या तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट आया? वर यू एबल टू रिमेंबर दैट इट इज अ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिटर? वर यू एबल टू रिमेंबर इट्स अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड? वर यू एबल टू रिमेंबर इट इज अ इन द केमिस्ट्री इट हैज अ कार्डिनोलॉइड रिंग? वर यू एबल टू रिमेंबर केलर किलियानी टेस्ट फॉर digoxin? Were you able to remember Sclufloracea family? Were you able to remember Digitalis lanata? जब मैं आपको एक चीज का नाम बताऊं, अगर आपको उससे रिलेटेड उसका कोग्नोसी, कोलोजी, केमिस्ट्री तीनों याद है, मैंने तीनों चीजें बोली, केमिस्ट्री में रिंग बोली, कोलोजी में उसका मैकेनिशन इंडिकेशन बोला, एंड कोग्नोसी में उसका क्लासिफिकेशन बोला, दैट्स द करेक्ट थिंग कि तुम भाई सही रास्ते पे हो, तुम्हें कोई भी चीज याद रह जाएगी, राइट? यस, जिसके भी डाउट्स है प्लीज हैंड्स रेज मत कीजिए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एट द एंड विल टेक अप द डाउट्स। यस, आई होप वी आर देयर। सबके नाम लेने पड़ेंगे क्या मुझे वापस? सबके नाम लेने पड़ेंगे? आई होप कोई सो नहीं रहा है इस 1 घंटे में, मुझे कोई सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए। यस, अभिषेक, मोहित, भावेश, साहिल, भार्गवा, ऐमान, एड्रेनलिन, क्या बात है, एड्रेनलिन नाम रखा है अभिषेक। यस, आई होप वी आर देयर। आकाश, अमित बेहरा, अर्चना, आई होप, अनुराग, वी आर देयर। यस, अरूप, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट, चारों जगह से, देख के अच्छा लगा। चलो ठीक है, जोश शुड बी हाई, मेरे साथ लिखते रहना है, मेरे साथ लिखते रहना है, जोश शुड बी हाई, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज द आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी के जो वो थियोरीज है, हिपोक्रेट्स थियोरी, यिन यांग थियोरी चाइना की, है ना, पाइथागोरन थियोरी, सैमुअल हैनमैन की होम्योपैथी की थियोरी, क्या है वो? आयुर्वेदा में वत्ता, पित्ता, कफा क्या होता है? जैसे पित्त बोला तो डाइजेशन, है ना? सो यू मस्ट नो पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये बेसिक चीज है जो आनी चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे क्वेश्चन हर टाइम, एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट, एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट, काय आहे त्याचं नाव? व्हॉट इज द नेम? શું નામ છે એનું? इवैल्यूएशन एंड टेस्ट्स। सो अगर मैं आपको टेस्ट के नाम बताऊं, केडे, केलर किलियानी, लीगल, बैल्जेट, रेमंड, शिनाडा, बॉन्ड टैगर, मॉडिफाइड बॉन्ड टैगर, मेयर, वैगर, ड्रैगनड्रॉफ, अम्बेलिफेरॉन, क्लंजेस, आइसोबारबेलॉइन, हैल्फेंस, बॉडीन्स, मैंडेनिन्स, अम्बेलिफेरॉन, एबियाटिक एसिड टेस्ट, मैंने जितने भी टेस्ट के नाम बोले वो सारी टेस्ट के रीएजेंट्स, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड से लेके पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड से लेके HNO3, हर एक रीएजेंट यू मस्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको रीएजेंट्स के नाम याद हो। along with that, कलर चेंज, किसमें क्रीमी प्रेसिपिटेट बनता है, किसमें रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है, इन विच वी गेट पर्पल कलर, थैलिक्विन टेस्ट क्या है, विटालीमोरिन क्या है, वैनॉक्स क्या है, राइट? यू मस्ट नो अबाउट एवरीथिंग। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन क्या देगा, कंडेंसेबल टैनिन कौन सा कलर देगा। जैसे ही मैं कुछ टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ, आई नो आई एम अ बिट फास्ट, बिकॉज हमें कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर करनी है विद टिल 1 PM, तो दैट इज वाई मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, ठीक है। यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वो रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं आराम से एट योर पेस। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप देख लें, ठीक है। ये मैं कह रहा था आपको, जो प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था, ये जो मेरी एक प्लेलिस्ट है ना, वो आपको देख लेनी है। यू हैव टू सी दैट हैव यू कवर्ड दैट क्वेश्चन। अगर ये मैं रिकॉर्डिंग पे क्या हूँ, अगर आपने मेरी वो प्लेलिस्ट देख ली, 125 में से 70 जीपैट के क्वेश्चंस आपके निकलेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। 70 यानी कि 280 मार्क आपको मैं दान दे रहा हूँ, प्लेट में निकाल के दे रहा हूँ। कौन सी प्लेलिस्ट है वो? एक सेकेंड, जीपैट क्रैकर सीरीज, ये इसमें से कुछ वीडियोस काम के नहीं, ये वाले जिसमें ये वाला थंबनेल लगा है, ब्राउन एंड व्हाइट वाला, ठीक है, वो सारे के सारे वीडियोस आपको देखने हैं। उसमें करीबन 20 वीडियोस होंगे, सब्जेक्ट वाइज है, तो सब्जेक्ट वाइज एक बार एनालाइज जरूर करना, सब्जेक्ट वाइज एक बार जरूर करना, कौन सा वीडियो, जैसे ये सारे देखो,
4 पार्ट 2 सुटिक्स कार्कोलॉजी कोग्नोसी, ये माइक्रो ज्यूरिस्प्रूडेंस, एचएपी, बायोकेम, इंजीनियरिंग, रिलेटरी अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग नाइपर वालों के लिए। सो इसमें जितने भी यहाँ तक ये से ये जितने भी है ना, ये सारे कवर कर लेने आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके टॉपिक्स देख लेने, ठीक है। इसकी भी मैं प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब इस पे डाल दूंगा, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिए, आप लोग ले सकते हो। ठीक है, छोड़ना नहीं है, उससे कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई कवर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। कवर इफ यू हैवंट कवर्ड, यस, नेहा, निशा, शहबाज, मिताली, नरेश, मरियम, हेम, अगर नहीं किया है, अंशिका, सौरभ, क्रेजी फार्मा, तो कर लेना। यस अनुराग, आराम से निकल जाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोला, मेरे लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी कहा था कि सर हमारे निकल गए उससे, तो ये तुम्हारे प्रूफ के साथ दे रहा है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज? यस यस, सब बताएंगे, डोंट वरी। यस लाडलो, सब बताएंगे, चिंता नहीं करो। ये कॉपी क्यों नहीं हो रही है? इतना चैट बॉक्स मेरा हैंग कर दिया कि कॉपी नहीं हो रही है। इतना मेरा चैट बॉक्स हैंग कर दिया कि अब कॉपी नहीं हो रही है चीज़ें, ठीक है। मैंने सेंड तो करी, अब होगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ओके, सो ये क्लियर है। फिर टेस्ट में लाइकोपोडियम 4, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, है ना। तुम्हें बोला मैंने प्रिज्म शिप क्रिस्टल किस में, तो हायोसीएमएस ऐसे याद आ जाना चाहिए। माइक्रोस्फिनॉइड किस में, तो बेलाडोना ऐसे याद आ जाना चाहिए। इफ आई टेल यू वॉल्टी ट्राइकोम्स किस में है, सेना। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किस में है, तो तुम्हें तुरंत ही याद आ जाना चाहिए, नक्सवामी का, है ना। सो आपको जैसे ही मैं ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, लाइकोपोडियम, देन डेफिनेशन ऑफ स्टोमाटल नंबर, स्टोमाटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो, ये सारे वी नो, हमें पता है कि इस पे क्वेश्चन आएंगे, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन, फिर भी वी विल लीव एंड गो। ओके, ते विसरू नका, वो मत भूलिए, ई भूलता नहीं, ठीक है। हाँ जी, वो भूलना नहीं है। हो गया कॉग्नोसी। सुटिक्स सबका फेवरेट, सुटिक्स का तो जितना पोर्शन करो उतना कम है, इट इज वेरी वेरी बिग, ठीक है। सुटिक्स को हम डिवाइड कर देंगे डियर, फिजिकल फार्मेसी, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड द मेजर फार्मास्यूटिक्स वाला, इंडस्ट्रियल फार्मेसी वाला पार्ट, ठीक है। सो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पैरेंट्रल्स, एरोजोल्स, tablets, capsules, parenterals, aerosols, suppositories, suspension, emulsion, semi-solid dosage forms. आई होप सबको हैंडराइटिंग समझ आ रही है। आई नो बहुत बुरी है, बट आई होप वी कैन एडजस्ट। सारे फार्मा स्टूडेंट्स तो सबको इतना तो समझ आ ही जाएगा, आई एक्सपेक्ट, ठीक है। पोसोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन। अगर मैं बात करूं नॉवेल ड्रग में, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सो तो नहीं रहा है, या कोई साइड में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और क्या होता है वो स्नैपचैट वगैरह तो नहीं चला रहा? माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड ट्रांसडर्मल ड्रग सिस्टम। फिजिकल फार्मेसी में रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, सल्यूबिलिटी, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स। क्या ये सारे नाम ले रहा हूँ? जैसे रियोलॉजी मैंने लिया, तो क्या तुम्हें विस्कोमीटर्स, क्या तुम्हें न्यूटोनियन, थिक्सोट्रोपी, ये सारी चीजें याद आ रही है? नहीं याद आ रही है, ठीक है। मैं वन ऑफ दोज पीपल हूँ, वन ऑफ दोज टीचर हूँ जो बहुत फ्रैंक रहता है, जो स्वीटली नहीं बोलता, ठीक है। आई क्रिटिसाइज, क्योंकि नहीं याद आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारा रिवीजन बहुत ही बेकार है। यू नीड टू इंक्रीज। अगर आपको मेरा माइक्रोमेटिक्स का नाम लेते ही कुल्टर काउंटर, एंडरसन पिपेट, बेड्स एड्सॉर्प्शन, अगर आपको टैप डेंसिटी, ग्रैन्युलर डेंसिटी, अगर आपको पोरोसिटी, बल्कीनेस याद नहीं आ रहा है, आपका जीपैट, नाइपर या कोई भी फार्मेसी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि आपने रिवीजन खराब किया है। यू नीड टू रिवाइज। आपने पढ़ा तो सब है, पढ़ते तो सारे ही है, बट रिवाइज कौन करता है, दैट डिसाइड्स द रैंक। और रिवीजन कैसे कर रहे हैं? अगर आपने पहले बार 15 मिनट लगाए हैं पढ़ने में, तो रिवीजन में सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए। अगर तुम रिवीजन में भी 15 मिनट लगा रहे हो, तो देन यू आर नॉट एबल टू रिवाइज एवरीथिंग।
फिर वो तुमने पहली बार पढ़ा ही नहीं है, तो पहली बार में तुम्हारा ध्यान यहाँ वहां था पढ़ते हुए, सिंपल सी बात है। और टेंशन कभी नहीं लेना है कि कहीं am I to remember this, will I be able to retain this for a longer period of time, क्या ये मुझे याद रहेगा, ये तो सोचना ही नहीं है क्या मेरा जीपैड निकलेगा, ये सब तो ख्याल आने ही नहीं चाहिए प्रेपरेशन के टाइम पे। ये तो इतने नेगेटिव है कि तुम्हें डूब ले जाएंगे, ये इतने नेगेटिव है, these are so negative that these are going to drown you out for sure. Yes, rheology, micromeritics, chemical kinetics, solubility और states of matter, incompatibility, ठीक है। और मैं एक टॉपिक भूल रहा हूँ फिजिकल फार्मेसी से, कोई मुझे याद दिला सकता है कौन सा भूल रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एनीबडी यू कैन मेक मी रिमेंबर दैट टॉपिक? यस, एनीबडी यू कैन मेक मी रिमेंबर दैट टॉपिक? हाँ जी। प्लाज्मोडेस्माटा, इन प्लाज्मोडेस्मा एक्सफॉर्मिका शिनोडा, बिल्कुल। कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्री फॉर्मुलेशन, वेरी गुड। कॉम्प्लेक्सेशन, कोलॉइड्स भी भूल गए थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लेक्सेशन, प्री फॉर्मुलेशन एंड कोलॉइड्स। अब मेरा अटक गया है स्क्रीन। कॉम्प्लेक्सेशन, सरफेस टेंशन, कोलॉइड्स, प्री फॉर्मुलेशन, ओके, यू मस्ट बी एबल टू रिमेंबर दिस। हे लक्षात ठेवा, आ याद राखो बता। यस, ये मत भूलिएगा। हाँ जी लाडले, सब है कि नहीं मेरे साथ? अब इनमें से क्या क्या पढ़ना है सर? ये तो आपने मेन टॉपिक के नाम बता दिए, ये तो दीज आर टू वास्ट, इसमें से क्या पढ़े? अरे डियर, टैबलेट कोई भी डोसेज फॉर्म हो, एनी डोसेज फॉर्म, उसकी तीन एस्पेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने। एक्सीपिएंट, बाइंडर, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, सुपर डिसइंटीग्रेंट, प्लास्टिसाइजर, ओपेसिफायर तो पढ़ने ही पढ़ना है। क्रायो प्रोटेक्टेंट, लायो प्रोटेक्टेंट, आइसोटोनिसिटी एडजस्टर, विस्कोसिटी मॉडिफायर, बफर्स, प्रोपेलेंट, कोई भी डोसेज फॉर्म हो उसका एक्सीपिएंट तो याद होना ही चाहिए। बेस, देन फॉर्मुलेशन कैसे बनाया, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, रोटोसॉर्ट, रोटोफिल, वो कौन सा है, क्लास 100 एरिया, एक्ोजेल, फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, एंड सम मिसलेनियस पॉइंट, जैसे टैबलेट में टैबलेट डिफेक्ट्स है, टैबलेट शुगर कोटिंग के स्टेप्स है, दोज आर इंपॉर्टेंट। कैप्सूल्स में डिफरेंस बिटवीन टाइप ए एंड टाइप बी जेलेटिन है, ग्लिसरोजेलेटिन इशू है, पैरेंटल्स में आपके पास है अलग अलग 100 क्लास, 100 टाइटल इन क्लास एरियाज है, वो याद रखने हैं। देन एरोजोल्स में आपको अलग अलग इवैल्यूएशन टेस्ट याद रखने हैं हर उससे, जैसे हार्डनेस, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, फ्लैश पॉइंट, लीकेज टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट। क्या ये सारी टेस्ट याद आ रही है आपको? सॉलिड फैट इंडेक्स टेस्ट। बहुत ज्यादा स्क्रीन अटक रहा है मेरा। यस, प्लीज अभी चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो। कैन वी स्टॉप राइटिंग इन द चैट बॉक्स प्लीज, मेरी बहुत स्क्रीन अटक गई। यस, कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट प्लीज? चलो चलो, हाँ जी, सब है कि नहीं मेरे साथ? सारे लोग मेरे साथ है या नहीं है? Yes, sir. चलो, दैट्स ग्रेट। माय स्क्रीन इज गेटिंग हैंग। ठीक है, एच एल बी वैल्यू सबको याद रखनी है, एच एल फॉर्मूलाज भी, जैसे आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, सपोजिटरी में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, यंग डिलिंग फ्राइड क्लास, आई एम सो सॉरी, पोसोलॉजी में फॉर्मूला क्या है, यू मस्ट टू रिमेंबर दैट। यस, विवेक, अभिषेक, हेतवी, अंश, याद रहे से याद रहेगा, अर्चना, सौरभ, मिताली, भावेश, अंशिका, क्या हमें याद रहेगा? अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो बुरा नहीं मानना, ठीक है, बिकॉज ये स्क्रीन अटक जाता है, सो आई एम नॉट एबल टू सी अदर्स।
यस, ऋत्विक, साई, साक्षी, संगीता, सलोनी, सौरभ, शंकर। क्या आप लोग मुझे आपकी कॉलेज के नाम बता सकते हो और द प्लेस फ्रॉम वे यू आर? कॉलेज के नाम एंड प्लेस। यस, विश्वजीत, गुड टू सी यू। यस, विवेक, वोगू, मनोज, योशित, सुशांता, सुदीप, सृष्टि, स्पंदन, शुभम, श्रुति, शिवानी, यस, रुचिका, रितेश, परमिता, ओम प्रकाश, निशा, निरंजन, नारेश, मिताली, शहबाज, मयूरी, अफसिया, मनीष, मदीना, वैष्णवी, कपिल, कैलाश, कंचन, जतिन, ज्योति, हिमांशु, हेम पंड्या, यस, गौरव, गायत्री, गौरी, गौरव पार्ट टू, अंशिका, डीके, धर्मेंद्र, दिव्या, चिरंजीवी, चिराग, अरूप, आयुषी, क्रेजी फार्मा, अरुण, अर्चना, अनुराग, कैन यू टेल मी योर कॉलेज नेम एवरीबडी? अनीश, अंश, अमित, आकाश, आदर्श, अभिषेक, ऐमान, भावेश, भार्गव, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी सूरत। क्या बात है, सुरती लालो, आईसीटी मुंबई, एसआरआईपी छत्तीसगढ़, सामर्थ कॉलेज, ओके, कर्नाटका कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कृष्णा कॉलेज, ओके, कराड़ है ना ये? हाँ, कराड़, यस आई नो लॉट ऑफ पीपल। अहमदनगर, आरजे वर्ल्ड, विलास रातूर, ओके, आईएसएफ मोगा, ओके, वाईबी चौहान, ओके, मेरे वाईबी चौहान से काफी स्टूडेंट्स थे, स्वप्निल घुगे वगैरह, दे वर माय स्टूडेंट्स। एलएम कॉलेज ऑफ अहमदाबाद, मेरे वहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। पीडीएम दिल्ली, ओके, ओके, ट्वीन्स एंड स्पैन्स, हाँ ट्वीन्स एंड स्पैन्स भी याद रखना है। स्पैन्स जो है वो वाटर इनसोल्यूबल के लिए है, ट्वीन जो है वो वाटर सोल्यूबल के लिए, केवीपीएस, ओके, आरआईपीएस, गवर्नमेंट, ओके, ओके, विलास राव, ओके, ये भी लातूर से ही है, चांगलं बरं, बहुत अच्छी बात है, यस, आजमगढ़, ओके, ओस्मानाबाद, टेरे कॉलेज, ओस्मानाबाद से भी मेरा एक स्टूडेंट था। अफजल, एमईटी, नाशिक, ओके, मल्ला रेड्डी, वेरी गुड कॉलेज, मल्ला रेड्डी, हैदराबाद, ओके, संजीवनी, कोपारगांव, राइट राइट राइट, कैप्सिन, इंदौर, देहरादून, छत्तीसगढ़, रायपुर, रायपुर तो बहुत बढ़िया जगह है, एचआर पटेल, ओके, हेम इज स्लीपिंग सर, अरे डीसीओपी लाउड, ओके, सेशन हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, सेशन तो ऐसे इतनी जल्दी हो गया, इतनी जल्दी? यस, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, कहाँ हो गया? ठीक है, डन 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 डन, चलो, चलो, लेट्स गेट बैक। सो आपको ये सारे पॉइंट्स तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भूलनी नहीं है। इवैल्यूएशन टेस्ट, मिसलेनियस फॉर्मुलेशन, एक्सीपियंस कैसे करते हैं इन सारे, प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, सिग्नेचरा क्या है, which one represents direction given to the patient, which one represents direction given to the pharmacist, surface tension में stalagmometer, उस ड्रॉप वेट, ड्रॉप काउंट, है ना, किसके लिए यूज होता है, ड्यूनोस टेंशियोमीटर, एचएलबी के फॉर्मूलाज 20 × 1 - s/a, देन एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, वो सारी। प्री फॉर्मुलेशन में क्रिस्टलाइन अमोर्फिस का डिफरेंस, इनैंशियोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म, कॉलॉइड्स में हॉफमीस्टर सीरीज, गोल्ड नंबर, स्कल्स हार्डी रूल, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कॉलॉइड्स के प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल काइनेटिक, कॉम्प्लेक्सेशन में टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड शेलेट्स, इनकम्पैटिबिलिटी में टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज, फिजिकल, केमिकल, थेरापियोटिक, केमिकल में भी दो टाइप्स है, वी हैव एडजस्टेड एंड टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी, स्टेट्स ऑफ मैटर, वी हैव सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें भी फर्दर आपको चीजें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे ल्यूसैक्स लॉ, सोल्यूबिलिटी में वो जो टेबल है, वेरी सोल्यूबल, फ्री सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पैनिंगली सोल्यूबल वाला। देन सोल्यूबिलिटी में आपको और चीजें याद रखनी है, वो है मेथड्स टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। सो आप माइक्रोनाइजेशन, पार्टिकल साइज कम करके यू कैन इंक्रीज सोल्यूबिलिटी, हाइड्रोट्रोफी, एडिशन ऑफ अ नॉन सॉल्वेंट, को सॉल्वेंसी, एडिशन ऑफ अ सॉल्वेंट लाइक प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, और सॉल्ट फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, ये सारे मेथड्स है टू इंक्रीज द solubility. These are all the methods with which you can increase the solubility. Micromeradics मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल साइज, वॉल्यूम मेजरमेंट के टेक्निक्स, फंडामेंटल एंड डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स। रियोलॉजी में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में आपको याद रखना है विस्कोमीटर्स, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक, सुडोप्लास्टिक, डायलेटेड फ्लो, एग्जांपल्स, रियोलॉजी में एग्जांपल्स मत भूलिएगा, बेंटोनाइट, मैग्मा, प्रोकेन, पेनिसिलिन, बल्जेस, फर्स, एग्जांपल्स नहीं भूलने हैं,
केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला, शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला, अरेनियस इक्वेशन, हे विसरू नका, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं है. प्लग फ्लो इज अ प्रॉब्लम. यस 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 यस. ओके. यस. डन डन आर डन. डन डन आर डन डन. चलिए आगे बढ़ेंगे. यस. शैल वी मूव अहेड. अब मैं कुछ माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ आपको, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. सो मेरे कुछ लाइव लेक्चर्स भी है. ठीक है. प्रमोट कर रहा हूँ, अगर चाहो तो सुन सकते हो 1 मिनट के लिए. आई हैव सम लाइव लेक्चर्स ऑल्सो. 35 to 40 लेक्चर्स है. एंड मेरे कुछ नोट्स भी है जिसकी ड्राइव लिंक है. सो इफ यू विश टू परचेज देम, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. इट्स फॉर 499 रुपीज. ये आज की ही ऑफर है अम्बेडकर जयंती की. अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप, ऐसे बेच नहीं रहा, खरीदनी हो तो ही खरीदना, वरना आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स रहेंगे अलग अलग ट्यूटोरियल से. फार्मेसी इंडिया, GDC, XYZ, बहुत सारे अलग अलग ट्यूटोरियल से. सो बट स्टिल अगर आपको ऐसे इंटरेस्ट है कि आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, इफ़ यू वांट अ रैपिड रिविजन जैसे, तो ये बहुत अच्छे लेक्चर्स है. आप ले सकते हो, मेरे खुद के ही है एंड सारे मैंने खुद ने ही लिए हैं. एंड इट्स फॉर 500 रुपीज़. इफ़ यू विश टू परचेज यू कैन. उसमें नोट्स भी आते हैं, ड्राइव लिंक भी. ठीक है. आप इस नंबर पे हाई मैसेज कर दीजिए एंड आई एम इंटरेस्टेड, सो वील सेंड द स्कैनर एंड द लिंक आफ्टर द पेमेंट. सो आप कर सकते हैं ना. बट आज का सेशन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए रखा है बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर टेलिंग मी कि सर फार्मा एग्जाम्स आ रही है, वी डोंट नो हाउ टू स्टडी. सर 1 महीना ही बाकी है सर, दिस मच इज टाइम इज रिमेनिंग, वी डोंट नो व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, कितनी डिटेल में पढ़े. सो आई होप दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आफ्टर टुडेज सेशन फॉर श्योर. बायोकेमिस्ट्री में आपको याद रखना है साइकिल्स. कौन सी साइकिल कहाँ हो रही है एंड कौन सी साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, इरिवर्सिबल स्टेप कौन सा है, एंड कितने एटीपी बन रहे हैं. सो एटीपी लोकेशन एंड द स्टेप्स. जैसे 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में बन रहे हैं, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. क्रेब्स साइकिल में 24 बन रहे हैं, इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. है ना. यूरिया साइकिल अकर्स इन द लीवर, इन द माइटो cytoplasm and mitochondria both. So ATP location and the steps. Irreversible कौन से है, तो 1, 3 and 9 are irreversible steps in glycolysis. Vitamins. Which vitamin is called what and the deficiency of that vitamin leads to what disease, and which vitamin has which ring. जैसे टेरिडीन रिंग. फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड एब्सेंट हुआ तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टोन, फ्यूरान रिंग, अगर वो एब्सेंट हुआ तो क्या होगा, स्कर्वी, जेरोफ्थैल्मिया, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस. है ना. सो यू मस्ट नो द विटामिन, द डेफिशिएंसी, द रिंग एंड द सिनोनिम. थाइमीन किसका सिनोनिम है, राइबोफ्लाविन किसका सिनोनिम है, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, फैट सोल्यूबल कौन से हैं, तो बी एंड सी. बी सी आर वाटर सोल्यूबल, रेस्ट ऑल आर फैट सोल्यूबल. सो यू मस्ट नो द सिनोनिम्स, डेफिशिएंसीज एंड, और क्या बोला था मैंने, सिनोनिम, डेफिशिएंसीज और रिंग. Then you must know the enzymes and the cofactors. This is important for gate and Napier specifically. So copper is a cofactor in cytochrome oxidase, potassium is a cofactor in pyruvate kinase, selenium is a cofactor in glutathione peroxidase, zinc and magnesium are cofactors in DNA polymerase and carbonic anhydrase. तो कोई ions होते हैं जो cofactors होते हैं कोई particular enzymes के लिए. So you must know that. Biomarkers, तो SGPT, SGOT किसके biomarker है, creatinine, तो जिम वाले पीपल, यस, क्रिएटिनिन लेते होंगे, किसके बायोमार्कर है वो, यस, मसल. देन एलडीएच, ट्रोपोनिन, ये सारे किसके बायोमार्कर्स हैं. अल्कालाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, प्रोस्टेट कैंसर के हैं. सो यू मस्ट नो अबाउट इट. विटामिन पी इज अ रूटिंग, इज अ परमिएबिलिटी फैक्टर, करेक्ट. सर कैन वी हैव अ डिटेल रिवीजन. सॉरी, आज का सेशन बस एक सुपरफिशियल रिवीजन है. इफ यू वांट द डिटेल रिवीजन, मैं एक यूट्यूब पे भी लाइव करूंगा. आई एम गोइंग टू गो लाइव ऑन यूट्यूब फॉर 3 आवर्स. तो मैं वो जाने वाला हूँ 25 सितंबर, 25, ये कौन सा मंथ है, अप्रैल. ठीक है. सो 25 अप्रैल को आप आ सकते हैं लाइव. वहां पे मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा डिटेल में. अभी आपको बस, यस इट इज गुड.
अभी बस आई एम गिविंग यू ऑल ओवरऑल रिविजन. ओके. या लीवर हार्ट वेरी गुड है ना, इसी के हैं. आईआईटी बीएचयू एंड आईसीटी इसी में आ जाएगी प्रथमेश, इसी में आ जाएगी. आईआईटी बीएचयू में भी केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है. सेम विद आईसीटी, केमिस्ट्री एंड कोलॉजी ये ज्यादा पूछते हैं. ठीक है. सेम. एंड वी ओवन हैव विश्वजीत सिंह इन दिस मीटिंग हु इज इन currently pursuing in ICT only his masters, so maybe he'll be able to tell you. Okay. Okay. चलो. यस, स्नाइपर की भी इसके बाद बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा. ओके. सो बायोमार्कर्स एंड विच एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है. एल कैप्टोन यूरिया किससे हो रही है, टे सैक्स किससे हो रही है, नीमैनपिक डिजीज किससे हो रही है, वॉन गॉर्के, पॉम्पे, कोरी, एंडरसन. सो दीज आर ऑल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज, परऑक्सीसोमल स्टोरेज डिजीज. सत्यनारायण बुक अगर खोल के देखी है, हाँ, जर उघडली असेल ते बुक, तर तुम्हाला माहित असेल की त्या बुकमध्ये, वो बुक में, ई बुकમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ છે, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उस बुक में है. ओके. ते खूप महत्वाचे आहे, ते लक्षात ठेवा, वो याद रखिए. ठीक है. हाँ जी, वो याद रखेंगे हम. बायोकेमिस्ट्री से एंड एंजाइम्स. एंजाइम्स में आपको माइकलिस मेंटेन प्लॉट, लाइन वीवरबर्ग्स प्लॉट, ऑट हिल, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, ये सारी चीजें याद आ रही है. सो ये सब चीजें पढ़नी है एंजाइम से. ठीक है. कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, सुसाइडल इनिबिटर्स कौन से होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए. यू मस्ट नो दीज पार्ट्स. बायोटेक्नोलॉजी से यू मस्ट नो वैक्सीन्स, इम्यूनोलॉजी, हाइपर सेंसिटिविटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हाइपर सेंसिटिविटी के 4 रिएक्शन, 1 2 3 4, एनाफाइलैक्टिक वगैरह कौन से हैं. वैक्सीन में लाइव वैक्सीन, अटेन्यूएटेड वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन वगैरह के एग्जांपल्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. हाइपर इम्यूनोलॉजी में आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, सारे इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, टोपियोइसोमरेज. तो सेंट्रल डॉगमा जो है आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, उससे काफी बार जीपैट में क्वेश्चन आया है. एंड इवन इन नाइपर सेंट्रल डॉगमा से क्वेश्चन आता है. ठीक है. सेंट्रल डॉगमा से नाइपर में भी काफी क्वेश्चन आते हैं. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. ओके. डन 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 डन. टेक्निक्स. वेस्टर्न ब्लॉटिंग कब किसके लिए है, प्रोटीन. सदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए. यू मस्ट नो अबाउट दिस. देन आरटीपीसीआर, पीसीआर किसके लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए. यू मस्ट नो अबाउट दिस. यस. डी के साहू, शुभम, हनुमंत, अविदेव, यस, विवेक, विश्वजीत. आई होप वी आर देयर. जीपैट फिंगर टिप से जीपैट हो जाएगा. कोई भी बुक से आपका जीपैट नाइपर नहीं हो सकता. वो बुक आपको बस एक रास्ता दिखाएगी, जो आपका 60 to 70% पोर्शन कंप्लीट करवाएगी. वो तभी होगा जब आपका जील हो, जब आपकी रिवीजन अच्छी हो. ठीक है. बुक्स आपको हेल्प कर सकती है, दे कैन हेल्प यू फॉर श्योर. 80% हेल्प कर सकती है, 20% तो तभी होगा जब आप खुद से पढ़ेंगे. सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सच्ची बात. हाँ जी. यस. चलिए. डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको वीडीआरएल, काहान, वैसरमैन, लेप्रोमीन, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, फ्रेहीस टेस्ट, शिक टेस्ट, डिक टेस्ट, ये सारी टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं, उन सबके डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम याद आ जाने चाहिए. माइक्रोबियोलॉजी से यू मस्ट नो अबाउट द स्टरलाइजेशन. You must know about staining, Imweg, acid fast, and gram staining. Then
आपको मालूम होना चाहिए बेसिक्स के कौन सा एंटीबायोटिक कौन से सोर्स से आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस, पेनिसिलिन नोटाटम, पेनिसिलिन क्राइसोफिलम, Chrysogenum, Penicillium griseofilum, Penicillin. Then you have Streptomyces nodosus, Streptomyces mediterranean, Streptomyces tenebris, Streptomyces nursi, Streptomyces orchidiensis, Streptomyces lavandulae, Streptomyces remosus, Streptomyces fradius, Streptomyces aureofaciens। 20 एंटीबायोटिक तो मैंने ही अभी आपको माइक्रोबियल सोर्स के गिना दिए, टोटल 20 जैसे ही है, 20-21। सो यू मस्ट नो। एंड कौन से एंटीबायोटिक के ऐसे में कौन सा माइक्रोब यूज होता है, जैसे बॉर्डेटेला ब्रोंकीसेप्टिका, पॉलीमिक्सी, ई कोलाई, क्लोराम्फेनिकॉल, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, नियोमाइसिन। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, विल नॉन फार्मा पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर डियर, नॉन फार्मा पार्ट। बट इफ यू वांट, वो जो प्लेलिस्ट मैंने भेजी है उसमें नॉन फार्मा पार्ट का दिया है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की स्ट्रेटेजी, दैट यू कैन सी। ठीक है, currently we will be only focusing in today's session for the pharma part, for the pharma part। ठीक है, तो आपने अगर इन तीनों से ये सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उस एस्पेक्ट से पढ़ाई करी इन द नेक्स्ट 1 मंथ, 25 में आपके पास एग्जैक्टली 40 डेज है, निकल जाएगा, निकल जाएगा जी पैक। अब कितनी रैंक से निकलेगा अगर आपने ये सब पढ़ा है जो मैंने बोला है विथ द डिटेल दैट आई हैव टोल्ड, तो आपके 125 में से 65 क्वेश्चंस ऑन रिकॉर्डिंग आई एम टेलिंग बन जाएंगे आराम से। यू विल बी एबल टू क्रैक। ओके, ते तुम्हाला भेटेल 60 to 65 क्वेश्चंस, फक्त हे एकदा वाचून घ्या, फक्त कृपया ये एक बार पढ़ लीजिए, एक बार वाचीने जजू। यू मस्ट रीड दिस वंस। 4 भाषाओं में बोल दिया मैंने, अब आपने नहीं पढ़ा तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। यस, एल्ला एनारू फॉर माई हैदराबाद पीपल, मुझे इतनी अच्छी तेलुगु तो नहीं आती, बट आई होप एल्ला एनारू विल वर्क फॉर यू। यस, हाँ भाई लाडलो, सही है, फॉर द हरियाणवी पब्लिक। अभी दे, चलिए, शैल वी मूव अहेड। चलिए, इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, सो इंजीनियरिंग से आपको कर लेना है जैसे सारे यूनिट ऑपरेशंस है। ठीक है, सो यू मस्ट नो ईच यूनिट ऑपरेशन एंड उसके इक्विपमेंट्स का प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, जैसे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आंसर वगैरह, आपके डाउट्स वगैरह भी। मेरा स्क्रीन बहुत अटक रहा है, माई स्क्रीन इज लैगिंग अलॉट, प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग इन द चैट बॉक्स फॉर नेक्स्ट 2 minutes। Size reduction, size separation, filtration, centrifugation, mixing, drying, filtration, distillation, flow of fluids, evaporation। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पढ़ना है, इनके इक्विपमेंट्स जैसे पिन मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, रोलर मिल, सिंपल डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, एंड इनके प्रिंसिपल्स, इम्पैक्ट एंड अट्रिशन, क्रशिंग एंड shearing, filtration, sedimentation, and इनके applications, which one is used for soft substances, which one is used for immiscible liquids, which one is used for high thermolabile substance, तो vacuum distillation, क्योंकि vacuum में temperature नहीं लगता। So you must know about this, you must know about this, applications, equipments, principles, and flow of fluids से रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीज थ्योरम। रेनॉल्ड्स नंबर के जो प्रे रिक्विजिट्स है, लेस देन 2000 हुआ तो कौन सा फ्लो है, 2000 to 4000 हुआ तो कौन सा फ्लो है, 4000 से ज्यादा हुआ सो विच फ्लो इट इज। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। बर्नौलीज थ्योरम आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए होती है। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज डीपीपी?
व्हाट इज डीबीपी? डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ओके। ठीक है। नए नए जेंजीज और उनके निमोनिक्स। यस ऑफ कोर्स डेली प्रैक्टिस, ये तो मैं कहता ही हूँ। अगले एक महीने तक रोज एक मॉक टेस्ट लगानी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज नहीं लगानी है। अब टॉपिक वाइज का टाइम नहीं है, फुल लेंथ मॉक, सारे टॉपिक्स एक ही टेस्ट में। क्योंकि जीपैट का पेपर जैसे आएगा बिल्कुल वैसे वो वाले मॉक्स लगाने, ऐसे अंधाधुन कुछ भी मॉक्स नहीं, टॉपिक वाइज। देन रेगुलेटरी एंड क्वालिटी अश्योरेंस से मैं बात करूँ तो आपके आ जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइपर। एफडीए किसका है, सीडीएससीओ किसका है, कौन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ आती है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आईवीआरआई कहाँ है, दैट यू मस्ट नो। सो ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज एंड एजेंसीज एंड देयर लोकेशंस। देन you must know the ICH guidelines for stability, especially quality, sorry। ठीक है, क्यू सेम है ना, तो क्वालिटी में क्वालिटी गाइडलाइंस Q1 से Q14 सब पता होने चाहिए। स्टेबिलिटी, एनालिटिकल वैलिडेशन, इम्प्यूरिटी, फार्माकोपिया, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोफार्मास्यूटिकल, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल रिस्क मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, न्यू ड्रग एंड ड्रग सब्सटेंसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो 12 तो मैंने ही तुम्हें बता दिया। सो यू मस्ट नो दी ICH गाइडलाइंस। स्टेबिलिटी जोन्स, तो 4 स्टेबिलिटी जोन्स है, 1 2 3 एंड 4, 4A 4B। हॉट एंड ड्राई किस में है, हॉट एंड ह्यूमिड किस में है, कोल्ड किस में है, स्टेबिलिटी जोन्स पता होने चाहिए। एंड एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज के कंडीशंस, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज के कंडीशंस। ठीक है। सो जैसे कि कौन सी, या कौन लॉन्ग टर्म कौन से हैं, कितने मंथ्स के लिए हैं, शॉर्ट टर्म एंड एक्सेलरेटेड कितने मंथ्स के लिए हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, व्हाट इज द टेम्परेचर 25 30 40 डिग्रीज, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी 60% RH, 65% RH, 75% RH, है ना, ये सब याद होना चाहिए। ड्यूरेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जब मैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज की बात करता हूँ। देन आपका आ जाएगा बायोफार्मास्यूटिक्स। सो बायोफार्मास्यूटिक्स से आपको कवर करना है, ये सबको 1 या 2 दिन ही देना है, ठीक है। मैं आपको डे वाइज भी ब्रेक डाउन बता दूंगा कि किसको कितने दिन देने हैं। सो लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर काइनेटिक्स यू मस्ट नो, मोड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन यू मस्ट नो, लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड कॉन्सेप्ट। फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स क्या होता है। Then methods of measurement of absorption and elimination rate constant। सो आपके इसमें आ जाएंगे वैगनर निल्सन रेसिडुअल मेथड, ट्रेपीजॉइडल रूल वगैरह। एंड देन फाइनली प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का कर्व, ये वाला याद आया। AUC, Cmax, Tmax, ऑनसेट ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन, इसमें PK कौन से हैं, PD कौन से हैं। यू मस्ट नो अबाउट दिस, यू मस्ट नो अबाउट दिस। हे लक्षात ठेवा, याद रखो, ये भूलिएगा नहीं। यस, यस। देखो 103 लोगों से 67 हो गए, मतलब इन्होंने हार मान ली, इन्होंने हौसला कम कर दिया अपना। अपनी हार नहीं माननी है डियर, ठीक है। सुनते रहना है, लिखते रहना है जो मैं कह रहा हूँ, सुनते रहना है, लिखते रहना है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, डन 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 डन। एंड देन इससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग का, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का डिफरेंस, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, उसके साइट्स जो है, वारफारिन, डायazepam, डिजिटॉक्सिन। ये आपको बायोफार्मास्यूटिक्स में ब्रह्मांड से कर लेना है अच्छे से, ये आपको छोड़ना नहीं है डियर, यू मस्ट नॉट लीव इट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डन 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 डन। यस, याद रखेंगे। कैन वी रिमेंबर दिस और नो, कैन वी रिमेंबर दिस, यस और नो। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, के ई। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट, ये नाइपर का फेवरेट क्वेश्चन है, दे डू आस्क एवरी ईयर, दे आस्क फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, एंड टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी।
बायोअवेलेबिलिटी इज व्हाट? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, दो टाइप की होती है. द रेट एंड एक्सटेंट एट विच a fraction of drug gets absorbed in the systemic circulation, that is a bioavailability. So वो आपको मालूम होना चाहिए, you must be aware of. Yes, लक्षात ठेवा, याद रखिए, याद रखिए, ये भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं. Yes, done, 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 done. Will we remember this? इसके बाद फॉर नाइपर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं. फॉर नाइपर क्वेश्चंस इवन जीपैट में आने लग गए हैं, अब तो जीपैट में भी आने लग गए हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से क्वेश्चन. सो क्या क्या आते हैं इसके लिए? अगेन मेरी यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो है. अगर आप, यस, ये फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स का रेशियो है. अगर आपने वो वीडियो कवर कर ली ना, तो आपका पूरा मैनेजमेंट कवर हो जाएगा. ठीक है, मेरी एक वीडियो है ऑन माय चैनल, प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियो कवर करें, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की ही है. हाँ, आईवीआईवीसी लिंक आप देख लेना है ना अभी जाके. आईवीआईवीसी इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, बिल्कुल इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं लेवल ए बी सी. पॉइंट टू पॉइंट कौन सा है, सिंगल पॉइंट कौन सा है, सो दैट यू मस्ट नो, दैट यू मस्ट नो. सर अभी रिविजन बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश फर्स्ट, मुझे सारे टॉपिक्स खत्म करने तो फिर बताऊंगा 12 बजे के बाद. ठीक है, प्लीज वेट, प्लीज हैव सम पेशेंस, है ना, प्लीज वेट. फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इफ आई टॉक अबाउट, सो हियर आपको माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ये सब नई चीज है, बिकॉज दिस इज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट. सम पीपल टेक दिस इन बी फार्म, कुछ लोग नहीं पढ़ते. सो बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट विथ. सो ये सारा आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन दैट वीडियो. यू मस्ट रीड दैट वीडियो, यू मस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैनेजमेंट से अगर आपने ये टॉपिक कर लिए, पेसल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इसका फुल फॉर्म, पेसल का फुल फॉर्म पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. कभी भी कोई प्रोडक्ट इफ यू वांट टू ब्रिंग इन द मार्केट, यू हैव वॉच द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, यू वॉच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, आप देखते हो कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, तो दैट इज अ पेसल स्ट्रेटेजी. ठीक है, सो मैनेजमेंट से हमें ये टॉपिक्स कर लेने हैं. देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिमिट टेस्ट एंड सिनोनिम्स का टेबल, एंड अल्फा बीटा गामा का डिफरेंस, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का डिफरेंस, limit test for chloride, sulfates, reagent and the role of reagent. बेरियम सल्फेट का रोल, अल्कोहल का रोल, क्या नाम है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल, सिट्रिक एसिड का रोल. यू मस्ट नो द रोल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज. ठीक है, टीक्यूएम बिल्कुल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्यूबीडी, हाँ, टूल्स ऑफ डीओई एंड क्यूबीडी, ये रेगुलेटरी में इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. टूल्स ऑफ क्यूबीडी एंड डीओई, ये रेगुलेटरी वगैरह में इंपॉर्टेंट है. CQA, CMA, CPP, critical quality attributes, critical process parameters, critical material attributes, design of experiments, quality by design, ये नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज फॉर नाइपर. अब मैंने यहाँ पे एक और क्या बोला था, सिनोनिम्स. रोशेल सॉल्ट किसका सिनोनिम है, ग्रीन विट्रियोल किसका है, एप्सम सॉल्ट किसका है, ग्लोबर सॉल्ट किसका है. यू मस्ट नो द सिनोनिम्स. टीयर गैस किसको बोलते हैं, you must know about all of this. Yes, laughing gas किसको बोलते हैं, QTPP, quality target product profile. Yes, you must know about all of this. Yes, level A is point to point Adinath. Okay. Chlorhexidine, chlorhexidine या chlorobenzomallonitrile. क्लोरहेक्सिडीन तो माउथ वॉश में यूज होता है.
क्लोरोबेंजो मैलोनाइट्राइल, क्लोरबेंजिडिल मैलोनाइट्राइल, दैट इज अ टीयर गैस। स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थियरी, ये लेवल 2 में होता है आप 5 आईवीसी, बिल्कुल ठीक है। डन 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 डन, याद रहेगा सबको, कोई सो नहीं रहा है ना? यस, ईशा, मिताली, अरूप, भावेश, सौरभ, गायत्री, विश्वजीत, हनुमान, अनीश, आदर्श, एमान, भावेश, आई होप याद है। यस, दुर्वाक्षी, भार्गव, आकाश, अमित, अनिकेत, अंश, यस, अर्चना, अरुण, अनुराग, आशीष, चिरंजीवी, चिराग, धर्मेंद्र, डीके, फतेह सिंह, गौरव पांडे, गौरव गवित, गायत्री, गौरव मित्र। मेरे पास पता है 6 गौरव है इस बार, जो मेरे स्टूडेंट्स है इस बार में 6 गौरव एग्जाम दे रहे हैं। एंड आदित्य, 3 आदित्य है और 2 जतिन है। भर भर के हैं इस बार कॉमन। मदीना, कंचना, कैलाश, यस, मयूरी, मनीष, शहबाज, मिताली, प्रथमेश, कोई बीच में छोटा, अफीजा, शहबाज, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, सही, साक्षी, सगळं चांगलं ना, बरं आहे, यस, अंश, बराबर છે ને, ऑल गुड, संगीता, सलोनी, सौरभ, सतीश, यस, शुभम, स्पंदन, सुप्रियो, सुदीप, एल विवेक, गोगू, योशित, यस, भालो, ऑल गुड, यस, चलो आमी अनेक भालो। चलो लेट्स स्टार्ट, चलिए 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 चलिए, सरस छे, खूब छान आहेस, चलिए, सुप्रीमेसी ऑफ गौरव्स, यस, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, गुड गुड गुड, आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम एवरीवेयर, गुजरात, महाराष्ट्र, તમને ગુજરાતી આવડે છે સર? યસ યસ, आई नो गुजराती, आई नो उर्दू ऑल्सो। चलिए लेट्स स्टार्ट। डन इनऑर्गेनिक से लिख लिया क्या सबने ये? एनालिसिस से अगर मैं बात करूं तो क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन, व्हाट डिड आई से? क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन, ये डियर आपको याद रखना है। सो क्रोमेटोग्राफी से अगेन एचपीएलसी, जीसी, पार्टीशन, एड्सॉर्प्शन, टीएलसी, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, अफिनिटी, इस सब को वैन डीमटर्स इक्वेशन, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, सोर्स या इंजेक्टिंग सिस्टम इन एचपीएलसी एंड जीसी, डिटेक्टर इन एचपीएलसी एंड जीसी, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इन जीसी, डेरिवेटाइजेशन इन जीसी एंड एचपीएलसी, ठीक है। वैन डीमटर्स हो गया, रेजोल्यूशन, फ्रंटिंग, टेलिंग, ठीक है। यू मस्ट नो अबाउट दिस, यू मस्ट नो अबाउट दिस, यस, क्लियर टिल हियर, क्लियर टिल हियर, यस, डू वी हैव एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं सो वी हैव यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, फ्लोरीमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम एमिशन, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री, एक छूट गया, फ्लोरीमेट्री रह गई। अब इसमें से क्या पढ़ना है? सबके एक टेबल बना देना है डियर, ये मेरे नोट्स में है, ठीक है। सोर्स, डिटेक्टर, प्रिंसिपल, ग्राफ, अरे 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 अरे, एंड सैंपल। जैसे यूवी, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मरकरी, टंगस्टन, जेनॉन, ये सारे सोर्सेज है। डिटेक्टर,
photo multiplier tube, photovoltaic cell. Principle Beer-Lambert's law. Graph absorbance against wavelength. IR Hooke's law. Transmittance against wave number. Bolometer, Gole cell, leather detector. Nurse glower, globar incandescent lamp. Source sample potassium bromide pellets and Nujol solution. NMR, radio frequency oscillator. Mass McLafferty's rearrangement. Pascal's triangle. Larmor frequency in NMR. Precisional frequency. M by Z ratio. Chemical shift. Shielding and de-shielding effects. ठीक है. और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है. आईआर से वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. वुडवर्ड फिशर रूल फ्रॉम यूवी. यस. देन इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. हे लक्षात ठेवा, ये मत भूलिए, ये याद रखिएगा. पिछले साल आपने सीरीज ली थी, हो गई शुरू हो गई, वो तो जनवरी में हो गई थी. देख लो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बन गई है उसकी भी, रैपिड रिवीजन वाली. भायंदर, ओके. आई एम फ्रॉम मलाड. चलिए. Yes, Linomat is an applicator useful in HPTLC. Illusion, yes. Normal phase, reverse phase होती है. So examples of normal phase, reverse phase, C8, C18 column वगैरह. Then आपको इल्यूशन, ग्रेडियंट इल्यूशन एंड आइसोक्रेटिक इल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए. कॉम्पोजिशन ऑफ मोबाइल फेस, वो कब सही होता है कब नहीं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए. कब कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहेगा तो वो आइसोक्रेटिक है, चेंज होता रहेगा तो वो ग्रेडियंट है. यस. डन 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 डन. नाइपर का पेपर जीपैट से हार्ड होता है क्या? मोहाली लेने वाली है तो बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सर नाइपर मोहाली से है, तो वो हमें कुछ ना कुछ इंसाइट्स दे देंगे पेपर के लिए. तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए. यस. दुख और डरना तो है ही नहीं कि मोहाली है तो हार्ड है. अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है. हम यहाँ हैं, हम पढ़ते हैं, हमें पता है व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है. डोंट वरी, आई कैन नॉट टेल मच. देयर इज रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, बट यस, चिल. ठीक है. अच्छा जाएगा पेपर आप लोगों का. चलिए. अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो, अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो. ठीक है. चलिए. चलिए. एंड वो सिर्फ हमारे जो पेड ग्रुप्स है मैं उसमें थोड़ी बहुत इंसाइट्स दे पाऊंगा, बिकॉज जनरल ग्रुप्स में तो वो बात बहुत लीक हो जाएगी. सो दैट विल बी ओनली गिवन टू ऑल माई स्टूडेंट्स. तो मेरे पास अभी तक 106 स्टूडेंट्स हैं, तो वो ग्रुप्स जो बने हैं. सो इफ यू वांट यू कैन परचेज आर नोट्स एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप ऑल्सो. ठीक है. इट्स फॉर 499 रुपीज. तो आपको उसमें नोट्स लिंक भी मिल जाएगी और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट ऑन द नंबर दैट आई हैव जस्ट गिवन बिलो, 8655067959. ठीक है. मोस्टली जो अभी इस लेक्चर में है, मोस्ट ऑफ देम मेरे स्टूडेंट्स ही है, बट यस, सम आर नॉट देयर, सो उनके लिए एक छोटी सी हिंट. ठीक है. यू कैन, नंबर गलत तो टाइप नहीं हो गया. यू कैन टेक्स्ट अ हाई ऑन दिस नंबर दैट वी विश टू परचेज द नोट्स एंड यू कैन जॉइन क्लास. करेक्ट. चलिए. फ्लोरीमेट्री में जैबलॉन्स का इस डायग्राम, क्वेंचिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस. क्या ग्रुप ऐड करने से फ्लोरेसेंस बढ़ रही है, कौन सा ग्रुप ऐड करने से कम हो रही है. Jablonski में internal conversion, vibrational relaxation, intersystem crossing, difference between fluorescence and phosphorescence, flame emission में Lundegraaff's burner, Mecker's burner, and absorption, atomic absorption में आपको ये पता होना चाहिए कि what atomic absorption में आपको मालूम होना चाहिए, राइट? क्या? hollow cathode lamp and electrodeless discharge lamp, HCl and EDL. और कौन से फ्लेम का कलर कौन सा है, सोडियम कौन सी कलर देगा, पोटेशियम कौन सा कलर देगा, आपको कौन सा आयन कौन सा कलर देता है, यू मस्ट नो दैट. ठीक है. टाइट्रेशन द लास्ट पार्ट. रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री. रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, नॉन एक्वियस, एसिड बेस.
वो जो छोटे मोटे टॉपिक्स है, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, वो नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एलओडी, एलओक्यू, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, ठीक है। एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एलओडी, एलओक्यू, ओके, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन 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 डन। पीपीटी में मोहर, वोलार्ड, फजान, गेल्यूसैक्स, इनके मोहर वोलार्ड में which is direct, which is back titration, which is having chromate indicator, which is having ferric indicator, which one occurs in the acidic media, which one occurs in the neutral media. You must know, you must know about this. Yes. Then electroanalytical techniques जैसे कि conductometry, potentiometry, polarography. So Nernst equation from potentiometry, conductometry से graph of strong acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, strong base, strong acid, weak base. पोलैरोग्राफी से हाफ वेव पोटेंशियल क्वालिटेटिव के लिए है, डिफ्यूजन करंट क्वांटिटेटिव के लिए है। सो आइल्कोविक इक्वेशन एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड क्या है एंड रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या है, यू मस्ट नो दैट। छोड़ना नहीं है, बस 15 मिनट और लूंगा एंड देन विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। डन 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 डन। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए लेट्स मूव, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप वी हैव रिडॉक्स। सो इन रिडॉक्स वी हैव मल्टीपल डोमेन्स, मतलब कि रिडॉक्स में आपका आयोडोमेट्री भी आ जाएगा, आयोडाइमेट्री भी आ जाएगा, बहुत सारे सब टॉपिक्स है। तो वो इंडिकेटर्स आप जब भी टाइट्रेशन पढ़ रहे हो ना, सो इंडिकेटर्स, कौन सा इंडिकेटर कौन से टाइट्रेशन में यूज हो रहा है, फिनोल्फथालीन, क्रिस्टल वायलेट, मिथिलीन, ब्लू मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल, ब्लूब्रोमोफेनॉल, ब्लूब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर्स लाइक म्यूरेक्साइड, इरियोक्रोम, सोलोक्रोम, उनका पीएच याद रखना है और कौन सा कलर कौन से पीएच में देता है। 100%, 100% इस पे क्वेश्चन आता है। 8.3 से 11 में पिंक कलर कौन देगा, फिनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज कहाँ देगा, 3.4 टू 4.4। थाइमोल ब्लू कहाँ देगा, 1 to 3 पीएच में। सो कौन सा कलर कौन से पीएच में, कौन सा इंडिकेटर और कौन से टाइट्रेशन में देते हैं। जैसे क्रिस्टल वायलेट नॉन एक्वियस में है, ओरालसिड ग्रीन नॉन एक्वियस में है, फिनोल्फथालीन मिथाइल रेड एक्वियस एसिड बेस में है, ठीक है। म्यूरेक्साइड वगैरह कॉम्प्लेक्सोमेट्री में। सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स भी मालूम होने चाहिए। इंटरनल इंडिकेटर कौन सा है, सेल्फ इंडिकेटर कौन सा है, एक्सटर्नल इंडिकेटर कौन सा है। जैसे सेरिक अमोनियम सल्फेट एंड KMnO4, दीज आर सेल्फ इंडिकेटर्स, है ना। स्टार्च आयोडाइड पेपर एक्सटर्नल इंडिकेटर है। हाँ, LOD इज 3:1 एंड LOQ इज 10:1, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। या थैंक यू आकाश। डन 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 डन। रिडॉक्स में इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री, आयोडाइमेट्री, परमैंगनोमेट्री, सीरियोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, ब्रोमैटोमेट्री, ठीक है। डाइक्रोमेट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोसीरियोमेट्री में सेरिक अमोनियम सल्फेट, परमैंगनोमेट्री में KMnO4, ब्रोमैटोमेट्री में पोटेशियम ब्रोमेट, आयोडोमेट्री में सोडियम थायोसल्फेट एंड आयोडाइड। आयोडाइमेट्री डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। छोटी छोटी चीजें हैं, PYQs है, बट ये तुम्हें पता होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस, यू मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यस सौरभ, यस सुप्रियो, अनीश, आकाश, हेम, आविदय, जतिन, आदिनाथ, सूरज, प्रथमेश, आविदय,
यस हनुमंत, आदर्श, गौरव, गौरव, आदित्य, यस हम है कि नहीं, ईशा, भावेश, आविदय, मिताली, अरूप, वोबू, विवेक, सुशांता, यस आविदय, आविदय यस और नो, शिवानी, शुभम, शंकर, संगीता, सलोनी, सई, ऋत्विक, ऋषिकेश, मिताली, रुचिका, शहबाज, है हम लोग। Yes, sir. ओके, चलो चलो बढ़िया। यस गौरी, फतेह सिंह, चिरंजीवी, जब तक तुम्हारा नाम ला लूं तब तक तुम चुप रहोगे, ऐसा है। धर्मेंद्र, चिराग, अरूप, आयुषी, अर्चना, अरुण, अनीश, छेन है, अंश, अनुराग, आकाश, भावेश, आविदय, दुर्वाक्षी, नाइस नेम, फर्स्ट टाइम मैंने दुर्वाक्षी नाम सुना है, भार्गवा, आई होप याद है, यस योशित, वोगू, चलो ठीक है, ठीक है, चलिए। सर यू आर आर इंस्पिरेशन, आपके लेक्चर से कभी लिए, ओके थैंक यू। थैंक यू, अप्रिशिएट इट, अच्छा लगा सुन के, चलिए 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 चलिए। कंपार्टमेंट मॉडल्स, एक्चुअली कंपार्टमेंट मॉडल्स में ना मैमिली एंड कैटेनरी इस पे ही आता है, विच वन इज सीरीज विच वन इज पैरेलल, वो ज्यादा डीप में नहीं पूछते, वो आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन वगैरह। सो अपना दिमाग इस पे ज्यादा मत खर्चा करो। यो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज। यस, तो क्या मैंने आपका पूरा फार्मेसी एनालिसिस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रेगुलेटरी एंड क्वालिटी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बायोफार्म में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इंजीनियरिंग, बायोकेम, बायोटेक, माइक्रोकोलॉजी, कोग्नोसिस्टिक्स, केमिस्ट्री, जुरिस्प्रूडेंस, किस में कौन से सब्जेक्ट में, सारे 15 सब्जेक्ट्स का क्या मैंने आपके समक्ष इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आया हूँ। ये 15 सब्जेक्ट्स के मैंने आपको टोटल 161 टॉपिक्स बताए हैं। इन 161 टॉपिक्स में आपके 125 में से 100 क्वेश्चन बनेंगे। ये मैं लाइव रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी होगी, मेरे यूट्यूब पे गंदे कमेंट कर देना अगर एग्जाम के बाद इसमें से टॉपिक नहीं आए तो। 161 टॉपिक मैंने आपको बताया, उसमें से 100 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आएंगे। ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस से कह रहा हूँ एंड हर बहुत सारी चीजें दिमाग में रख के कह रहा हूँ। अगर आपने नहीं किए तो मुझे मत कहना। मेडिसिनल केमिस्ट्री रह गई सर, एक्चुअली मेडिसिनल केमिस्ट्री से मैंने आपको बोला कि आपको बस हेट्रोसाइक्लिक रिंग याद रखनी है ना, जैसे टिमोलॉल, क्योंकि आप एसएआर याद रखना या सिंथेसिस के याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे इंपॉर्टेंट याद रखो स्क्रॉप वगैरह, फ्रिनलैंडर, बट आपको रिंग, मॉर्फोलिन रिंग एंड टिमोलॉल, बिल्कुल थायाडायजोल रिंग एंड टिमोलॉल, सिमिटिडीन में इमिडाजोल, रैनिटिडीन में फ्यूरैन, फैमोटिडीन में थायाजोल, कीटोकोनाजोल में इमिडाजोल, फ्लूकोनाजोल में ट्रायाजोल, मिडाजोलाम में इमिडाजोल, ट्रायाजोलाम में इमिडाजोल, सॉरी ट्रायाजोल, है ना। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स, लिनिजोलिड में भी है बिल्कुल, मॉर्फोलिन रिंग है, बेंजिमिडाजोल में, बेंडाजोल में है, थाया मेट्रोनिडाजोल में नाइट्रोइमिडाजोल है। सो देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रिंग्स, आप यू नीड टू रिमेंबर द हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, स्टेरॉयडल रिंग इन स्पाइरोनोलैक्टोन, है ना। सो बस यही देखना है, थायलाजीन किस में है, पिरिमिडीन किस में है, पायरी जैसे मिनॉक्सिडिल बोला तो पिरिमिडीन, थायलाजीन रिंग बोली तो एमिलोराइड, ट्रायमटेरिन बोला तो टेरिडीन रिंग, है ना। सो आपको रिंग्स याद होनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस लक्षात, क्या ये लक्ष्य में रहे, क्या ये आपके दिमाग में रहेगा, क्या ये आपके दिमाग में रहेगा, यस और नो। मेरे पिछले साल भी क्या क्वेश्चन, क्या कहा था वो, मेरा पिछले साल भी कुछ तो किसी ने लिखा था, एक, अरे यार कोई बात नहीं आकाश, इस बार तुम्हारा एक मार्क्स से नहीं, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 नंबर्स में आए, आई होप, या 1 या 10 या 11 या 12, है ना। इस तरीके से आए, 1 तो नहीं कह सकता, नहीं तो मेरे बाकी स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे, बट यस मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे इसी से आए। सर इट इज अ प्लेजर टू डायरेक्टली हियर फ्रॉम यू, यू आर अ मोड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रुचिका, अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, डन 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 डन। चलो अब मैं आपको ब्रेक डाउन बता देता हूं मैं। आई जस्ट गिव यू अ ब्रेक डाउन कि अब लास्ट के कुछ दिन है तो क्या करेंगे। अब आपके पास मैं आपको 30 डेज ब्रेक डाउन बता देता हूँ क्विकली कि कैसे रिवाइज करेंगे। प्रथमेश कहाँ गया, कब से पूछ रहा था रिवीजन कैसे करें, बताओ। लो भाई, लास्ट 35 डेज में मैं आपका 40 दिन गिन ही नहीं रहा, मैं बस 35 डेज गिन रहा हूँ। यहाँ इन 10 दिनों में आपको खत्म कर देना है कोलोजी एंड सुटिक्स, सब कुछ जो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं एटलीस्ट वो। बाकी के क्लासिफिकेशन मैं फोर्स नहीं करूंगा, डायबिटीज भी इन्वॉल्व कर लेना, उसमें डायबिटीज नहीं। सो प्लीज ये आपको याद रखना है कोलोजी एंड सुटिक्स में जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे याद रख के चलने हैं। 5 जो बाकी है वो आपको कोग्नोसी को देने हैं 5 डेज। यहाँ पे केमिस्ट्री जिसमें सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेडिकेम तीनों आ जाएंगे। ये 5 दिन में माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक। अगले 5 दिन में जुरिस, क्यूए और इंजीनियरिंग। और ये सारा करते करते एक मॉक टेस्ट कंपलसरी है रोज देना, ठीक है, मतलब 30 मॉक टेस्ट लगना जरूरी है। 35 मॉक टेस्ट तो लगनी ही चाहिए। 35 मॉक टेस्ट नहीं लग रही है, आई एम सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड रैंक। मॉक टेस्ट डेली लगाना तो अति आवश्यक है। सो सुटिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग ये आपका 2 दिन, ये 2 दिन, ये माइक्रो के लिए 1 दिन, केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मेडिकेम, कोग्नोसी में सारा, सुटिक्स में भी सारा, फिजिकल, फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल एंड नॉवल, तीनों चीजें 5 दिन में खत्म होनी चाहिए। एंड बाकी जो 5 दिन है उसमें एनालिसिस, बायोफार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस को 2 दिन, बायोफार्मास्यूटिक्स को 1 दिन, और एक कोई रह गया है सब्जेक्ट। एक क्या रह गया मुझसे, एक क्या रह गया है मुझसे, कुछ रह गया है क्या? नहीं तो ये प्लान अधूरा कैसे हो गया, कुछ रह गया है मुझसे। क्या रह गया है? क्या रह गया है, कौन सा सब्जेक्ट रह गया है? बायोटेक्नोलॉजी। नहीं वो तो लिख लिया है डियर, छोड़ो, यहाँ मैनेजमेंट और वो एच ए घुसा पी। लो। एच ए पी, थैंक यू, थैंक यू। एच ए पी 2 दिन, ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर इफ यू सी एच ए पी से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। हमने आज एच ए पी डिस्कस नहीं किया, अभी कर लेंगे। तो ये आपको जी पैट के लिए, नाइपर के लिए तो और 10 दिन जो एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, क्योंकि नाइपर 10 जून को है, तो 1 जून से 10 जून में आपको कर लेना है पूरा आर ए एंड क्यू ए। आपको कर ले हैच वैक्समैन एक्ट वगैरह, जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिविटी, पैटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बेसिकली सारे आईपीआर, ठीक है। देन आपको उसमें कर लेना है मैनेजमेंट एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स सबसे कंटाला है ना, टी टेस्ट, अनोवा, जेड टेस्ट, क्रिस्कल वैलिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, वो सारे। तो 10 दिन में ये कर लेना है आपको एक्स्ट्रा फॉर नाइपर, ठीक है। आईआईटी के लिए आई टोल्ड यू केमिस्ट्री एंड कोलॉजी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब एचएपी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ एंड देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे, देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे बिकॉज तुम्हें भी काम होगा। और एचएपी में आपको सारे सिस्टम्स याद करने हैं पहले तो। कौन से सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, बताओ। बॉडी के 9 सिस्टम्स बताओ। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी, लिम्फेटिक, इंटेग्यूमेंट्री, कार्डियोवैस्कुलर, ऑटोनॉमिक, सेंट्रल,
एंडोक्राइन, एक कोई रह गया है, एक कौन सी सिस्टम रह गई है? कोई सिस्टम रह गई है क्या? क्या कोई सिस्टम रह गई है मुझसे? इंटेग्यूमेंट्री, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी, हाँ वो तो कार्डियोवास्कुलर में आ जाए। स्किन, ठीक है। अब ये सारी सिस्टम्स है हमारी बॉडी की, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, जैसे कार्डियोवास्कुलर में, तो आपको कार्डियोवास्कुलर में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक मिला के डबल सर्कुलेशन होता है, कार्डियक साइकिल, सिस्टोल सिस्टोल डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्शन पोटेंशियल का कर्व, सोडियम डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, यू मस्ट नो अबाउट दिस, ओके। हे विसरू नका, आ याद रखो, ठीक है। लिम्फेटिक में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी में आ जाएंगे आपके गैल्ट, मैल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। प्राइमरी में आ जाएंगे लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज। इंटेग्यूमेंट्री में आपको रिसेप्टार्स, प्रोप्रियो रिसेप्टार्स, बेरो रिसेप्टार्स, थर्मो रिसेप्टार्स, कीमो रिसेप्टार्स, मैकेनो रिसेप्टार्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, बसाले, जर्मिनेटेवियम, ल्यूसीडियम, स्पाइनोसम, सारे लेयर्स ऑफ द स्किन। देन आपको याद रखना है मेजनस कॉर्पसल्स और पेसिनियन कॉर्पसल्स, उसका रोल। देन एंडोक्राइन सिस्टम से सारा पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, पाइनियल, अड्रेनल, गोनाड्स, सारे का फंक्शन, विच हार्मोन, जैसे टीएसएच, तो T3 T4 डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी कौन सी डिजीज होती है? गॉइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सेडेमा। कौन सी चाइल्ड में होती है? तो क्रेटिनिज्म। कौन सी एडल्ट में होती है? मिक्सेडेमा। सो आपको हर एक हार्मोन उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होती है, एडिसन्स, कुशिंग्स, एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, क्रेटिनिज्म, मिक्सेडेमा, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, गॉइटर, एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर, ये सारी चीजें याद रख लेनी है, ये सारी चीजें याद रख लेनी है। दैट्स ओके, जस्ट पढ़ने लायक पढ़ो फाइनल एग्जाम के लिए। सेमेस्टर 8 का पेपर होगा ना, बायो 4 ही तो पेपर होते हैं उसमें। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी वो तो कोई पेपर ही नहीं मानता, दैट इज नॉट अ पेपर अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज ऑल फालतू। बायो स्टैटिस्टिक्स, हाँ ये थोड़ा सा टफ है। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू अटेंड अ मैसेज। चलिए, हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब जो मैंने उसमें पढ़ाया है, जो जो मैंने उसमें बोला है, एंड साथ में मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू, अगर आपको टाइम मिलता है इन सब के बाद, तो महा मैराथन जो है वो बिल्कुल अटेंड कीजिए, जीडीसी वाला जो महा मैराथन है वो बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। अच्छा है वो, इस बार तो मैंने भी 2-3 अटेंड किए, देखे मैंने लाइव, बहुत अच्छे बनाए हैं इस बार क्वेश्चन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स एंड फंक्शन। स्क्रोटम, फीमेल में स्क्रोटम क्या होता है? फीमेल में पेनिस कौन सा होता है? तो क्लिटोरिस इज अ फीमेल पेनिस, है ना। ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, ऑर्गन्स, वजाइना, यूटेरस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, all of these. Then reproductive hormones, progesterone, testosterone, estrogen, relaxin, inhibin, कौन सा प्रेगनेंसी हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, एफएसएच, एलएच का रोल। रेस्पिरेटरी में टाइडल वॉल्यूम, रेसिडियल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, सारे के सारे वॉल्यूम्स याद होने चाहिए। एंड द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होता है, डायफ्राम क्या डोम शेप का होता है, डायफ्राम डायफ्राम का फ्लैट होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, फ्लैट और डोम शेप। देन हर एक ऑर्गन का फंक्शन, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, एपिग्लॉटिस, वॉइस बॉक्स क्या है, ट्रैक, वुड फूड पाइप किसको बोलते हैं, विंड पाइप किसको बोलते हैं,
Digestive में all the digestive glands, liver, pancreas, salivary, all the digestive organs, esophagus, pharynx, stomach, small intestine, large intestine, appendix, सबका फंक्शन, सबके हॉर्मोन्स, पेप्सिन, कौन से एंजाइम्स आते हैं, काइमोट्रिप्सिन किस में है, ट्रिप्सिन किस में है. You must be having a thorough idea of all of this. You must be having a thorough idea about all of this. Yes. Yes. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस देख लेना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक रिसेप्टार का अल्फा 1 बीटा 2 कौन से रिसेप्टार कहाँ इन्वॉल्व है. अल्फा 1 नेजल में है, अल्फा 2 हाइपरटेंशन में है, बीटा 1 हाइपरटेंशन में है, बीटा 2 अगेन लंग्स में है ना, कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में है, कौन सा कार्डियोवास्कुलर में है, कौन सा स्मूथ मसल्स में. यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टार्स, तो तुम आराम से ड्रग क्रैक कर लोगे. सीएनएस में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, कौन सा थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, कौन से हायर सेंटर है, कौन सा वॉलेंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस क्या है, सेरिब्रम क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का है. सो यू मस्ट बी हैविंग अ थरो नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दिस एज वेल. ठीक है, ये याद रख लेना है आपको. यूरिनरी में आपको किडनीज, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये चारों ऑर्गन्स के फंक्शन, जीएफआर यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, है ना. 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन याद कर लेना है. एंड कोई सिस्टम रह तो नहीं गई, कोई सिस्टम रह तो नहीं गई. ठीक है, डन है, डन 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 डन. यस, आर वी डन विथ ऑल ऑफ दिस. क्या हमें एचएपी से पता है क्या पढ़ना है. पैथोफिजियोलॉजी से तुम वो ही सब पढ़ लो. एट्रोपी क्या होता है, हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया क्या है, मेटाप्लेसिया क्या है, बिकॉज ये सेम 2 में पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं हम. कब सेल नंबर इंक्रीज होता है, व्हेन सेल साइज इंक्रीजेस, व्हेन सेल चेंजेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एपिथेलियल सेल कनेक्टिव सेल में कन्वर्ट, कुछ एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव कुछ भी हो सकता है. सो वो डिस्प्लेसिया होता है, मतलब कौन सा क्या है टर्म दैट यू मस्ट नो. यस, कुछ छूट तो नहीं रहा. और कोई टॉपिक जो मैं पढ़ाना भूल गया या बताना भूल गया और आपको याद आ रहा हो, और कोई टॉपिक जो मैं पढ़ाना या बताना भूल गया हूँ एंड आपको याद आ रहा हो तो बताइएगा. देखो आज हमने कितनी पढ़ाई करी है, देखो आज हमने कितनी पढ़ाई करी है, इतनी. अब ये तो बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप डीप में घुसोगे तो हमने आज काफ़ी ज़्यादा आपके जो पिछले 1 साल की मेहनत है उसे डिस्कस किया, या पिछले 2 साल की मेहनत है वो डिस्कस करी है एक वाइट बोर्ड पे. सो आई होप दैट आपके लिए ये यूजफुल होगा एंड आपको मज़ा आएगा. स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, लो भाई, लो भाई, यही भूल गए, किसी ने याद भी नहीं दिलाया. हाँ भाई, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम. एक्सियल, अपेंडिकुलर, एक्सियल में 80 होते हैं, अपेंडिकुलर में 126 होते हैं, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, है ना. फेशियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स होते हैं, जाइगोमैटिक, एथमॉइड, स्फेनॉइड, है ना, वूमर, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड, है ना, ये सारे क्रेनियल बोन्स हैं. फेमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस, है ना. ये सारे आपको याद होने चाहिए स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम में. जॉइंट्स, आपको सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पता होने चाहिए. विच इज इमूवेबल, विच इज फ्रीली मूवेबल, विच इज स्लाइटली मूवेबल, ये सारा यू मस्ट नो अबाउट दिस. सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस, ये मालूम ही होना चाहिए. इसको अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं. सर, इन नीड फॉर गुड नोट्स फॉर एचएपी. I'll see if I have, I'll share, circulate. ठीक है. और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फॉर जी पैट, ऑल दी अपडेट्स फॉर ऑल दी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. मैं उसकी लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, मैं उसकी लिंक आप लोगों को दे देता हूँ. ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में डाला है. आई हैव एडेड इन द चैट बॉक्स, यू कैन वॉच दैट लिंक. ठीक है, डन 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 डन. यस, मैं भी थक गया. यूजुअली मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास लेता हूँ तब मैं नहीं थकता, लेकिन आज मैं 1.5 घंटे में थक गया. बताओ क्यों. क्योंकि आज मैंने अपनी जितनी एनर्जी थी ना सब बचा के रखी.
क्योंकि सुबह भी मेरी क्लास थी कहीं पे, अभी मेरी एक और क्लास है 2 बजे, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू गो सर। 8 तो हो गया। एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, एक दो क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाइपर। बताए तो मैंने अभी अभी हैचबैक्समैन एक्ट, आईपीआर वगैरह, और बाकी डिटेल में वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पता चलेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे। सर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे, अरे यार ये तो मुझे प्लीज मत बताया करो मार्क्स कम आ रहे हैं डियर। मेरे भी बहुत कम आते थे, ठीक है, वो मॉक टेस्ट डिजाइन ही करी जाती है 10x के हाई लेवल की। हाँ, अगर तुमने कोई चीज बहुत ज्यादा पढ़ी है, रिवाइज करी है, and फिर तुम वहाँ सॉरी गलत कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग ओवर देयर, तब तो तुम गलत जा रहे हो, फिर तब तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तब तुमने रिवीजन ही नहीं किया, सॉरी, यू लैक रिवीजन, तुम्हारा जीपैट नहीं निकलेगा अगर तुमने उस तरीके की पढ़ाई करी है तो। ओके, डन 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 डन। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, हाँ देखो रिएक्शंस जब आप पढ़ते हो तो आपको बस, जैसे अब मैं क्लेमेंसन का नाम लेता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए क्लेमेंसन में कीटोन या अल्डेहाइड से अल्केन बनते हैं, कीटोन या अल्डेहाइड से अल्केन बनते हैं, ठीक है। किस में बनते हैं? जिंक अमेल्गम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, रीएजेंट, प्रोडक्ट एंड, रीएजेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, जिंक अमेल्गम इन HCl, बिल्कुल। सर आपके कितने नंबर आ रहे थे? मेरे तो यार आते थे 200 250, मेरे मेन एग्जाम में 300 बने थे, बट आते थे मेरे 200, बिकॉज मैं बहुत शरारती बच्चा था, मैं इधर उधर बहुत, मैंने जीपैट के लिए सिर्फ 1 साल पढ़ाई करी है, बाकी मैं फर्स्ट टू थर्ड ईयर सिर्फ मस्ती, अच्छे से। यस, हेलो, हेलो, हाँ जी, प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम, आई एम इन अ लेक्चर। डन 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 डन। अरे बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल 20-25 रॉन्ग हो रहे हैं, हाँ एक्यूरेसी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पता चला आपको आए 250 मार्क, लेकिन आपने एक्यूरेसी के चक्कर में एक्यूरेसी खराब कर दी और आपके 40 रॉन्ग है, तो सीधा 210 पे गिर गए, ये नहीं करना है। 10 से 15 रॉन्ग तो होने भी चाहिए, हो जाते हैं 10 से 15 रॉन्ग तो मार्क बिल्कुल होते हैं, 15 रॉन्ग से ज्यादा रॉन्ग नहीं होने चाहिए, फिर एक्यूरेसी वो रेशियो बिगड़ जाता है। एंड मिनिमम टू क्वालिफाई जीपैट, सबको मिनिमम, मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इतने, बट मिनिमम 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आने हैं 125 में से, किसी ने अगर 65 से कम करे हैं जीपैट नहीं निकलेगा, सॉरी। मैक्सिमम मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम 125 आए तो 125 भी कर दो, लेकिन दिमाग में अगर पहले ये सोच के चलते हो ना कि मुझे 100 करना है 100 करना है, तो आप 100 पे रुक जाते हो, इवन इफ यू वांट, तुम्हें आते हैं 106 108 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी तुम करते नहीं हो, बिकॉज योर ब्रेन टेल्स यू टू स्टॉप। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप 120 पे रुक जाए, सॉरी 100 क्वेश्चन पे ना रुके। आप अपने दिमाग को ये आप मत कहे कि यार भाई मेरे से इतने ही होंगे, कितने भी हो जाएंगे आराम से, बस मिनिमम 65 to 70 क्वेश्चन करने हैं, उससे कम नहीं करने। ओके चलो देन, डन है, डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक, बाल एंड बाल, एंड अमित वर्मा की जीपैट एक्सप्लोर, नाइपर जेई एक्सप्लोरर। यस, मॉक टेस्ट फिंगर टिप्स आर टू बी डन ऑफ ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स जो भी मैंने बताए हैं थॉरली, ठीक है, डन 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 डन। चलो देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।